بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں ہمیں ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ، آمین۔ مسلم لیگ نون کی میزبانی میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا پہلا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی گرفتاری سے پیدا ہونے والی صورتحال اور دیگر سیاسی قائدین اور رہنماؤں کے خلاف حکومتی سیاسی انتقامی کارروائیوں پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آن شیرازی سے۔ جی آن، کیا تفصیلات ہیں؟ جی اعتزاز، بالکل دیکھیے، پاکستان مسلم لیگ نون کی میزبانی میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا یہ پہلا اجلاس ہے جو اے پی سی میں باقاعدہ طور پہ اس موومنٹ کا اعلان کیا گیا اور آج اس کا پہلا اجلاس ہو رہا ہے۔ اجلاس جو ہے ہنگامی طور پہ بلایا گیا تھا۔ اگر باقاعدہ طور پہ یہ اجلاس ہوتا تو اس میں مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ اختر مینگل اور دیگر جو رہنما ہیں وہ شریک ہوتے، تاہم گزشتہ روز شہباز شریف کی جو گرفتاری ہوئی اس کے بعد یہ اجلاس ہنگامی طور پہ بلایا گیا اور اس میں وہی رہنما شریک ہیں جو اسلام آباد میں موجود تھے، تاہم پھر بھی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے مرکزی رہنما ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کیونکہ دبئی میں موجود ہے، اس وجہ سے وہ شرکت نہیں کر پائے، اور آصف علی زرداری بھی اسلام آباد میں نہیں تھے، اس لیے وہ نہیں شرکت کر پائے۔ تاہم پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نییر بخاری، ان کے ساتھ شیری رحمان اور دیگر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، پاکستان مسلم لیگ نون سے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال اور ان کے ساتھ دیگر اہم رہنما جو ہیں اس وقت اجلاس میں موجود ہیں، جبکہ اور دیگر انس نورانی سمیت اپوزیشن کی جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کی نمائندگی بھی موجود ہے، اور جمعیت علماء اسلام فے جو ہے اس کے جو عبدالغفور حیدری اور ان کے ساتھ جو اکرم درانی اور ایک بڑا اہم وفد ان کی جانب سے بھی اس اجلاس میں شرکت کر رہا ہے۔ اگر ایجنڈے کی بات کروں، جس ایجنڈے پہ ابھی غور کیا جا رہا ہے، ہمارے ذرائع جو میٹنگ کے اندر سے بتا رہے ہیں اس کے مطابق پہلا اور مین ایجنڈا ہے جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور ابھی اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف، ان کی گرفتاری کے حوالے سے، جبکہ دوسرا جو معاملہ جو زیر بحث آ رہا ہے وہ ہے گلگت بلتستان کے الیکشن، اور کیونکہ کل حکومتی وزراء نے ایک اہم پریس کانفرنس بھی کی تھی اور دوسری جانب جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن جماعتیں ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت ان کو سائیڈ لائن پہ کر گیا۔ تو یہ دو مین ایجنڈے ہیں جن پہ غور کیا جا رہا ہے، اور حتمی فیصلے جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اس اجلاس کے خاتمے کے بعد میڈیا ٹاک کی جائے گی اپوزیشن کے رہنماؤں کی جانب سے، اور پھر وہ اعلان کریں گے کہ پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے آئندہ کیا لائے عمل اختیار کیا جائے گا، اور خاص کر کے جو اپوزیشن کے جو اہم رہنما ہیں جن کو نوٹس نیب کی جانب سے مل رہے ہیں، اس حوالے سے بھی حتمی لائے عمل جو ہے وہ بتایا جائے گا۔ بہت شکریہ آن شیرازی۔ تیز رفتاری کا خوفناک انجام، مختلف ٹریفک حادثات میں 13 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ تیز رفتاری جان پر بھاری پڑ گئی، مختلف ٹریفک حادثات میں کئی افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کمالیہ میں چیچا وطنی روڈ پر تیز رفتار ٹرالر کار پر الٹ گیا، حادثے میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ ٹرالر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 خواتین اور 2 مرد اور ایک بچہ شامل ہے۔ سانگر میں کھپرو نارا کنال کے قریب تیز رفتار جیپ الٹ گئی، حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ مریدکے میں ناروال روڈ پر وین اور موٹر سائیکل میں تصادم سے ماں اور بیٹا موقع پر جاں بحق جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خیرپور میں ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے ماں بیٹا جاں بحق جبکہ باپ زخمی ہو گئے، پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ سرگودا میں ٹرک نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ میں کباڑی کی دکان میں دھماکے سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دھماکہ نوشہرہ کے علاقے اکبرپورہ میں واقع کباڑی کی دکان میں ہوا جو 5 افراد کی جان لے گیا۔ واقعے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا۔ ڈی پی او نوشہرہ کے مطابق دریائے کابل کے کنارے پڑے ہوئے پرانے بم اور گولے کباڑیوں نے اٹھائے تھے۔ دھماکے میں جاں بحق ہونے والے 5 افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جسکا میں پیشی پر آئے مخالفین میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے۔ جسکا میں احاطہ کچہری کے باہر پیشی پر آئے مخالفین میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس سے 3 افراد جاں بحق جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس نے
دسکا کے علاقے پنڈوریا کے دو خاندانوں میں عرصہ دراز سے دشمنی چلی آ رہی ہے۔ آج دونوں خاندانوں کا احاطہ کچہری میں آمنا سامنا ہوا۔ فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق اب تک خاندانی لڑائی میں 10 سے زائد افراد قتل ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مربت اور ڈیرہ اسماعیل خان کے سرحدی علاقوں میں پراسرار بیماری سے 1 سال کے دوران سینکڑوں بکریاں ہلاک ہو چکی ہیں۔ ضلع لکی مربت کے علاقے شاہ حسن خیل اور عبدالخیل میں کورونا جیسی علامات ظاہر ہونے پر سینکڑوں بکریاں اب تک ہلاک ہو چکی۔ لیبارٹری ٹیسٹ میں PPRO وبا کی تصدیق ہوئی ہے، تاحال بیماری کا کوئی علاج یا بچاؤ تجویز نہیں کیا گیا، جس سے بیماری انسانوں میں منتقل ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ تبدیلی سرکار نے ایک بار پھر ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، جس سے عوام پریشان ہیں۔ بھکر کے شہریوں نے حکومت سے قیمتوں میں اضافہ کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ ناصر عباس کی رپورٹ۔ مہنگائی کے مارے عوام پر حکومت کا ایک اور وار۔ پیٹرول اور گیس کی قیمتیں پہلے ہی مہنگی تھی کہ تبدیلی سرکار نے غریب عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا۔ تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ تبدیلی آ گئی ہے جو کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ حالیہ دنوں میں ادویات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر کے حکمرانوں نے غریب کا جینا دو بھر کر دیا، جس کی وجہ سے ضروریات زندگی کا حصول عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہو گیا۔ عوام پہلے ہی بیچاری کورونا کی زد میں ہے، پہلے ہی باقی معاملات کی زد معاشی طور پہ کورونا کا شکار ہے اور عوام بالکل پس چکی ہے۔ اس وقت قوت خرید عوام کی ختم ہو چکی ہے۔ ہم جو ریٹیلر بیٹھے ہیں، ہمارا بھی لازمی بات ہے جب ایک پروڈکٹ کے ریٹ بڑھیں گے ہمیں انویسٹمنٹ بڑھانی پڑے گی، ہم کہاں سے مزید انویسٹمنٹ لائیں۔ ادویات کی قیمتوں میں بلا جواز اور خود ساختہ اضافہ سے جہاں بھکر کے شہری پریشان ہیں، وہیں ڈاکٹرز نے بھی تشویش کا اظہار کیا۔ ضلعی صدر PMA ڈاکٹر طلحہ نیازی کا کہنا ہے کہ ادویات کی قیمتیں بڑھنے سے شہریوں کی اذیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ہم یہ جو سڈن ریز کی پرائسز میں، میڈیسنز میں بہت زیادہ جو کہ غریبوں پہ بہت بوجھ ہے، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور اس کو واپس لیا جائے اس ریٹ۔ شہریوں نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کو عوام پر ظلم قرار دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ادویات کی قیمتیں پہلے ہی آسمان سے باتیں کر رہی تھیں اور اب غریبوں سے جینے کا حق بھی چھینا جا رہا ہے۔ کیمرامین سمیلا شاکری کے ساتھ ناصر باز بلوچ، سچ TV بھکر۔ اوکارا میں بھی ادویات کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کا سر چکرا کر رکھ دیا۔ مختلف بیماریوں کی 94 ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے مریضوں سے ادویات کی خریداری کی سخت چھین لی، بتا رہے ہیں شاہد کھوکھر۔ جی شاہد۔ بالکل، اس وقت میں اوکاڑا کے مین بازار میں موجود ہوں اور یہاں پر ہمارے ساتھ میڈیسن خریدار موجود ہیں جو کہ حالیہ یہ جو میڈیسن میں اضافہ ہوا ہے اس کے بعد یہ جو احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہاں اوکاڑا میں بھی خریدار جو کافی حد تک پریشان ہے۔ مزید جو ہے ہم سے جانتے ہیں، جی بتائیے گا۔ جی عوام اتنی پریشانی میڈیکل سٹور پہ آنے تو کہنے جی ایک دوائی ود گئی، پھر دوبارہ گھر جانا پڑتا ہے، گھر جا کے پھر پیسے لینے پڑتے ہیں، لہٰذا گورنمنٹ نو اپیل کی جاتی کہ مہربانی کی جائے میڈیسن ریٹ پہ، بہت بہت مہربانی۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے خریدار کی بات سنی، ان کا کہنا یہی تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ اسی وجہ سے مزید یہ جو ہمارے ساتھ دکاندار بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں ان کی کیا رائے اس بارے میں۔ جی بتائیے گا۔ جی سر، قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل لوگوں کو سامنا کر رہے ہیں۔ کم از کم ان کی پیئنگ کیپیسٹی بہت کم ہے اور یہ لوگ میڈیسن اتنی مہنگی افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ غریب آدمی ہیں، غریب معاشرہ ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اس پہ نظر ثانی کریں۔ ہماری التجا ہے، ہماری حکومت سے درخواست ہے، اس میں سب کا بھلا ہے، ہمارے پورے پاکستان کا بھلا ہے۔ بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا کہنا یہی تھا کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا حالیہ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا، اس کو نظر ثانی کی جائے اس کے اوپر۔ اور دوسرا یہ انہوں نے بتایا ہمیں کہ یہاں پر جب سے یہ اضافہ دیکھنے میں آیا قیمتوں میں، اس کے بعد سے یہ جو خریدار ہیں میڈیسن کے وہ خاطر خواہ ان میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ جی بہت شکریہ شاہد۔ حکومت کے عوام کو ریلیف دینے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ آٹا، دال، گھی، چینی سمیت دیگر اشیاء خورنوش غریب کی پہنچ سے دور ہو گئیں۔ اس حوالے سے دیکھیے امیر عباس کی یہ رپورٹ۔ حکومت میں مہنگائی کے ماروں کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ آٹا، دال، گھی، چینی غریب کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ لوگ سراپا احتجاج بن گئے، مہنگائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ مہنگائی کا جن قابو سے باہر ہو گیا۔ دال، آٹے سے لے کر سبزی گوئی تک سب مہنگے داموں فروخت ہونے لگے۔ دکانداروں نے من مرضی کے ریٹ مقرر کر رکھے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لوگوں کا سائی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا، گوشت کھلوتا ہے 280 روپیہ کلو ہے، آلو ہے تو 200 کلو نہیں کھلوتے، سبزیاں لے سے کھا نہیں سکتے، نہ ایسا دال کھا سکتے پایا، سبزیاں لے دکان نہ لے، سانو بڑی مہنگائی کی کھلوتے ہیں۔ کیمرامین زینب بادشاہ کے ساتھ سید امیر بادشاہ، سائی ٹی وی، جنگ مسن۔
एशिया के गर्म तरीन इलाके सिब्बी में साफ पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। शहरी मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। उमर फारूक की रिपोर्ट। एशिया के गर्म तरीन इलाके सिब्बी में पानी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। अलाहाबाद, वाबड़ा कॉलोनी, हाड़ा मोहल्ला समेत कई इलाकों में गुज़िश्ता एक माह से पानी नापैद है, तो वहीं कई इलाकों में बदबूदार पानी फराम किया जा रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि पानी की अदम फरामी की वजह से महंगे दामों टैंकर डलवाने पड़ते हैं, जो महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम की जेब पर इजाफी बोझ है। तकरीबन 1.5 महीना हुआ कि हमें बदबू वाला पानी दिया जा रहा है। हमारे हकाम बाला को पहले भी बताया, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर को पहले भी टेलीफोन किया, मुलाकात की, लेकिन कोई इस पर असर नहीं हुआ। जनाब वाली तमाम लाइनें टूटी हुई हैं और हम मजबूर हैं। हम टैंकर मंगाते हैं, तकरीबन हफ्ते में 2 दफा 8-9 का पानी मंगाते। इलाका मकीनों ने महकमा PHE के आला हुकाम समेत डिप्टी कमिश्नर सिब्बी और हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इन्हें पानी की फरामी को यकीनी बनाया जाए, ताकि इलाका मकीन सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर उमर फारूक, सच न्यूज सिब्बी। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हनीफ अब्बासी के खिलाफ शौकत खानम अस्पताल अरजाना केस अदालत ने हनीफ अब्बासी को 50 लाख की डिग्री कर दी। शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट ने फंड और करप्शन के इल्जामात लगाने पर 2012 में हनीफ अब्बासी के खिलाफ दावा दायर किया था। इस हवाले से मजीद जानते हैं सुहेल राजा से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। आपको बताते चले, हनीफ अब्बासी के खिलाफ शौकत खानम अस्पताल अरजाना केस अदालत ने हनीफ अब्बासी को 50 लाख की डिग्री कर दी है। शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट ने फंड्स और करप्शन के इल्जामात लगाए थे। इस हवाले से जानते हैं सुहेल राजा से। सुहेल राजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी की अदालत ने शौकत खानम अस्पताल की जानिब से 10 करोड़ हर्जाने के दावे के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए जो 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया है। शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट ने 2012 में हनीफ अब्बासी के खिलाफ 10 करोड़ हर्जाने का जो दावा दायर किया था। हनीफ अब्बासी ने शौकत खानम अस्पताल में फंड और करप्शन के हवाले से खुद मुल्क का इल्जाम लगाया था, जिस पर शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट ने हनीफ अब्बासी को 10 करोड़ हर्जाने का नोटिस भेजा था। केस का फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नकीब शहजाद की अदालत ने सुनाया। जी बहुत शुक्रिया सुहेल राजा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मुतालिक हुकूमत की जानिब से वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया। वर्किंग पेपर में ओगरा ने हुकूमत को 2 तजावीज भिजवा दी हैं। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत 3 से 4% सस्ती हुई है और आलमी कीमत के तनासुब से पेट्रोल और डीजल 2 रुपए फी लीटर तक सस्ता किया जाए। पेट्रोल लेवी की शरह बढ़ाकर कीमतें बरकरार रखी जा सकती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। वजारत खजाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक हतमी ऐलान कल करेगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं चौधरी कामरान से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक हतमी जो वर्किंग पेपर है वो तैयार कर लिया गया है और वर्किंग पेपर में ओगरा ने हुकूमत को 2 तजावीज भिजवाई हैं। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 से 4% तक कमी आई है। तजवीज में ये कहा गया है आलमी कीमत के तनासब से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर तक जो है वो कमी की जा सकती है। ओगरा की तजवीज जो हुकूमत को भिजवाई गई है, इसके साथ साथ ओगरा ने दूसरी तजवीज जो दी है हुकूमत को ये कि पेट्रोलियम लेवी की शरह बढ़ाकर कीमतों को जो है वो बरकरार रखा जा सकता है। ताहम इस हवाले से हतमी फैसला जो है वो वजारत खजाना कल वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी और उसके बाद बाकायदा तौर पर जो है वो फैसला किया जाएगा कि कीमतें बरकरार रखी जानी है या उनमें कमी की जाएगी। बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। ट्रैफिक की बहाली को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स तो लगा दिए गए थे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की अदम तवज्जोही के बाद शहर की मेन शाहराहों पर लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल्स मुकम्मल तौर पर खराब हो चुके हैं। मजीद जानते हैं जुनैर नूर से। जी जुनैर। हाँ जी बिल्कुल, सिटी ट्रैफिक पुलिस गुजरांवाला की जानिब से ट्रैफिक की बहाली को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल तो लगाए गए थे, लेकिन सिटी ट्रैफिक पुलिस की अदम तवज्जोही के बायस ये ट्रैफिक सिग्नल मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुके हैं। मैं इस वक्त गुजरांवाला की मेन शाहराह है निगाह चौक में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर
जो ट्रैफिक सिग्नल है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पर ना तो इनके अंदर लाइट मौजूद है और ना ही यहाँ पर कोई बिजली का कनेक्शन। अगर मेरा कैमरामैन आपको दूसरी तरफ दिखा सके तो ये शहर की मेन शहर है, यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल ख़राब होने की वजह से उनको ठीक कराने की बजाय उल्टा ट्रैफिक सिग्नल ही उतार दिए गए हैं। और जब शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों का कहना है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि इन सिग्नल को बिल्कुल ठीक करवाए ताकि जो कई घंटे ट्रैफिक में फंसे रहते हैं उनके टाइम का जो ज़िया है वो भी बच सके और जो मामूल के मुताबिक जो ट्रैफिक हादसा है उनसे भी बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया जुनैर नूर। पंजाब के दीगर शहरों की तरह पत्तोकी में भी चावल की फसल पक कर तैयार हो गई। फसल की कटाई का अमल जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली शेर भट्टी। पंजाब के दीगर शहरों की तरह पत्तोकी में भी बेशतर इलाकों में चावल की काश्तकारी का अमल जारी है। सख्त मेहनत व मुशक्कत करने के बाद काश्तकार अपने मुस्तकबिल की उम्मीद काश्त करते हैं। हालिया दिनों में खवातीन, मर्द और बच्चे सब ही अपने अपने हिस्से का काम करके चावल की फसल की काश्त में मगन नजर आते हैं। पत्तोकी शहर के गिरदो नवाब में तकरीबन 12 लाख एकड़ ज़राई अर्जी पर चावल काश्त किए जाते हैं और यहाँ जो इकसाम काश्त की जाती है इनमें बासमती, गंजा और सुकरी की देसी इजनास समेत हाईब्रिड का मोटा चावल भी शामिल होता है। बढ़ती हुई महंगाई के पेशे नजर किसान फैमिली का हुकूमत से चावल की मुनासिब रेट तय करने का मुतालबा है। मुंजी की कटाई का सिलसिला शुरू है जी। असी बड़ियां मेहनतां ते मुशक्कतां दे नाल मुंजी पाली है जी ते वज़ीर आला नूं पंजाब नूं चाहिदा है कि सानू कोई रिलीफ दिता जाए भी ताकि जिम्मेदार भी खुशहाल हो सके। इन काश्तकारों का कहना है कि ज़राई शोबा और काश्तकारों के इस्तेहकाम और इनकी हौसला फजाई के लिए फसल की माकूल कीमत मुकर्रर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि माकूल कीमत पर चावल की खरीदो फरोख्त की वजह से किसान की मेहनत जायज और मुआवजा के साथ पाकिस्तान की मुआशत को मजीद बेहतर बनाने का बायस बन सकती है। कैमरा टीम के साथ अली शेर भट्टी, सच न्यूज, पत्तोकी। व्हाइट गोल्ड कपास की फसल हुकूमती अदम तवज्जुही का शिकार है। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा रेट पर फसल कपास की खरीदारी मुमकिन न हो सकी, जिस पर काश्तकार शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं काजिम अब्बास से। पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा ज़राई मुल्क है, जिसकी 70% आबादी किसी न किसी तरह ज़राअत से मुंसलिक है और ज़राअत पाकिस्तानी मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत में फसल कपास को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, जिससे हासिल होने वाली रेशम न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून ममालिक में भी निहायत अहमियत की हामिल है। अरसे दराज से फसल कपास से मुंसलिक किसान शदीद परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं, क्योंकि कभी किस्मत साथ नहीं देती, कभी हुकूमत की जानिब से मुनासिब दाम न मिलना, जिस पर किसानों का कहना है कि इस साल टिड्डी दल के हमले से बिजाई की गई फसल बिल्कुल तबाह हो गई थी। दोबारा फसल कपास की बिजाई करने पर हमें मजीद अखराजात करने पड़े, लेकिन इसके बावजूद हमें हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करता रेट नहीं दिए जा रहे। साडा टिड्डी दल ने कपाह दा बिल्कुल खात्मा करता सी जी, बहुत मुश्किल नाल दोबारा पाल पोस के कपाह नूं कीता। ठीक है, हुण साडा हुकूमत पाकिस्तान नाल मुतालबा है कि जी रेट जिहड़ा हुकूमत दा मुकर्रर करदा रेट है वो यकीनी बनाया जाए और जट्टां नूं इस तों कम से कम जिहड़ा हुकूमत दा रेट है वो तो मिलना चाहिए जनाब। काश्तकारों ने हकाम आला से दर्दमानदाना अपील करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा रेट के मुताबिक कपास की खरीदारी को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ। में महकमा ज़राअत का दफ्तर भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। आला हुकाम की अदम दिलचस्पी से दफ्तर दौरे जदीद में भी बिजली, पानी और तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुल्करनैन। किसी भी मुल्क में महकमा ज़राअत का शोबा बड़ी अहमियत के अमल होता है, मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस शोबे पर तवज्जो नहीं दी जा रही। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल दीना ज़राअत दफ्तर की है। दौरे जदीद में भी दीना जीटी रोड पर 1980 में कायम किया जाने वाला महकमा ज़राअत का दफ्तर आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस दफ्तर में मुलाजमीन के बैठने के लिए न ही तो कोई फर्नीचर है और न ही पीने के लिए कोई पानी की सहूलत मुयसर है। बिजली की जरूरत आजकल के दौर में बुनियादी जरूरत समझा जाता है, मगर यह दफ्तर बिजली जैसी सहूलत से भी गुज़श्ता कई सालों से महरूम है। महकमा ज़राअत के दफ्तर की चरदीवारी न होने की वजह से बाज़ औक़ात ये वैगन स्टैंड का मंजर पेश कर रहा होता है। अगर बात की जाए दफ्तर के रहायशी क्वार्टरों की तो वो भी भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे हैं। खिड़कियां दरवाजे टूट फूट का शिकार हैं और बिजली पानी जैसी सहूलत यहाँ भी दस्तयाब नहीं। इस दफ्तर के 6 मुलाजिम है जो कि अपनी नौकरी के दिन पूरे कर रहे हैं। हुकूमत किसानों के रिलीफ के लिए अक्सर बुलंदोबाग दावे करते हुए दिखाई तो देती है, मगर किसानों की सहूलत के लिए बनाया गया दफ्तर आज भी किसी मसीहा का मुंतजिर है। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। रेमियार खान की तहसील खानपुर में 2 नहरों के संगम पर बनाए गए जॉगिंग ट्रैक को म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से आर्टिफिशियल मशरूम, स्ट्रीट लाइट्स और प्लांटेशन करके सजा दिया गया। जहां ज़ेब खान की रिपोर्ट।
कानपुर में 1.5 किलोमीटर के फासले पर मुहित 2 नहरों के संगम पर बनाए गए जॉग ट्रैक की सजावट के लिए असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद यूसुफ चीना ने चीफ ऑफिसर बल्दिया राना महमूद अहमद और अपनी टीम के हमरा काम शुरू कर दिया है। आर्टिफिशियल मशरूम्स, बैलून्स, स्ट्रीट लाइट्स, प्लांटेशन और खूबसूरत गेट लगाकर ट्रैक की तज़ीनो आराइश की गई है। जॉगिंग ट्रैक के दोनों तरफ बहती नहरों के साथ साथ ट्रैक की सजावट करने से न सिर्फ शहरियों को सेहतमंद और पुरसुकून माहौल मैसर हुआ है, बल्कि ट्रैक की खूबसूरती को भी 4 चांद लग गए हैं। माशाल्लाह इसी साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया है और खानपुर में कोई भी तफरीही मकाम नहीं था। अब इस वजह से अब ये है कि माशाल्लाह अब यहाँ पे लोग शाम के टाइम बहुत ज़्यादा वॉक भी कर सकते हैं और तफरीही प्रोग्राम के लिए भी यहाँ पे लोग आ सकते हैं। हम मतलब असिस्टेंट कमिश्नर के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। शाम को या किसी टाइम भी यहाँ पर आके तफरीह के लिए अपना टाइम स्पेंड कर सकें और अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकें। जैसे कि शहरियों को कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर ने ट्रैक के लिए बहुत अच्छा काम किया है और तफरीही मकामात खानपुर में होने चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ जहांजेब खान, सच न्यूज, खानपुर। या वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिंध में तवील बंदिश के बाद तालीमी इदारे तो खुल गए, मगर मीरपुर खास के माली कॉलोनी के प्राइमरी स्कूल की इमारत खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से 800 से ज्यादा तलबा तालीम से महरूम हैं। उबैदुल्लाह की रिपोर्ट। सिंध भर में 7 माह बाद क्लासेस तो शुरू हो गई, मगर स्कूलों की हालत दुरुस्त ना हो पाई। मीरपुर खास के करीब माली कॉलोनी में 800 के करीब शागिर्द अपने स्कूल की हालत जार होने से सख्त परेशान है। माली कॉलोनी प्राइमरी स्कूल गुज़िश्ता 1 साल से तामीराती मरहले में है, जिसकी वजह से तलबा तालीम से शदीद महरूम है। असातिज़ा का कहना है कि 1 साल से स्कूल तामीराती मरहले में है। लॉकडाउन लगने के बाद तामीराती काम बंद है, जिसकी वजह से 800 के करीब तलबा दरपदर है। ये स्कूल है जिसमें 800 और 850 बच्चा जो है ज़ेरे तालीमी सुबह और शाम की शिफ्ट में सुबह में जो है बॉयज पढ़ते हैं तकरीबन 600 के करीब, और शाम में जो है 250 के करीब गर्ल्स यहाँ पे पढ़ रही होती है। गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारे स्कूल को कंप्लीट कराया जाए। हमारे बच्चे तालीम से बहुत मुतासिर हो रहे हैं। अपने असातिज़ा की बात सुनी, गुज़िश्ता 1 साल से जो है ये स्कूल तामीराती मरहले में। इनका ये मुतालबा है कि स्कूल की तामीरात को फिलफोर कंप्लीट किया जाए ताकि शागिर्द बआसानी अपनी तालीम हासिल कर सकें। उबैदुल्लाह कोरी, सच टीवी न्यूज़, मीरपुर खास। हैदराबाद में 1ली से 8वीं जमात तक तदरीसी सरगर्मियों का आगाज हो गया। सैनिटाइजर, स्प्रे और मास्क लाजमी करार दिया गया। जहांजेब अली की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक 1ली जमात से 8वीं जमात तक तदरीसी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। कोरोना वबा के तकरीबन 6 माह बाद तदरीसी अमल के दूसरे मरहले में 1ली जमात से 8वीं जमात के तलबा और तालबात को स्कूल आने की इजाज़त मिल गई। तमाम निजी और सरकारी स्कूलों में हुकूमत की जानिब से बनाई गई SOPs पर सख्ती से अमल करवाया जा रहा है। स्कूल के दरवाजे से दाखिल होते ही तलबा और तालबात का थर्मल गन से बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता है, जबकि क्लासरूम्स और स्कूल में मास्क को लाजमी करार दिया गया है। सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए असातिज़ा ने बताया कि स्कूल्स में महकमा सेहत की हदायत के मुताबिक तमाम SOPs को भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। हमने तमाम SOPs पर अमल किया। सैनिटाइजर्स रखें, स्प्रे मशीन रखी है, थर्मल गन के जरिए बच्चों का टेम्परेचर चेक किया। यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी है इस स्कूल में, लेकिन उसके बावजूद जो है हमने एक प्लानिंग के तहत इनको अल्टरनेट क्लासेस के हवाले से इसको शेड्यूल करके और कोशिश की है। इंशाल्लाह अल्लाह से यही दुआ है कि हमारा स्कूल जो है वो इस तरह से जो है वो चलता रहे। 6 माह से घरों में बंद बच्चों ने भी तालीमी सरगर्मियाँ बहाल होने पर खुशी का इजहार किया। स्कूल खुलने के बाद हमें बहुत खुशी हो रही है कि बड़ा फख्र महसूस हो रहा है। स्कूल खुलेगा, बहुत मजा आ रहा है। काफी तालीमी नुकसान हुआ है, लेकिन हम दोबारा SOPs पे अमल करके स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। कोरोना वबा में कमी के बाद जहां हुकूमत ने तालीमी अदारे खोले हैं, तो वहीं वालिदैन और असातिज़ा पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि बच्चों को हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल करवाएं। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, हैदराबाद। हुकूमती अहकामात के बावजूद दिहाड़ी के मुख्तलिफ सरकारी स्कूल्स में कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी की जा रही है। जिलाई अफसरान शहर के स्कूल्स में फोटो सेशन करवा के आला अफसरान को सब अच्छा है की रिपोर्ट देने लगे। मोहम्मद नदीम की रिपोर्ट।
एक तरफ हुकूमत की तरफ से मुल्क भर के तलीमी इदारों में कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए गए हैं, वहीं दूसरी जानिब विहाड़ी के मुतअद्दिद सरकारी स्कूल में इन SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। शहर के वस्त में मौजूद सरकारी स्कूल में तलबा फेस मास्क और समाजी फासले का बिल्कुल ख्याल न रखते हुए तलीमी सरगर्मियों में मसरूफ हैं और दही इलाकों के सरकारी स्कूल में तो कोरोना SOPs पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं किया जा रहा। असतज़ा ने भी समाजी फासले को नजरअंदाज करते हुए तलबा को फेस मास्क के बगैर दर्जनों की तादाद में इकट्ठे बैठा रखा है। मतलब स्कूल में असतज़ा खुद भी बगैर फेस मास्क लगे बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ हैं। असतज़ा और ज़रिए अफसरान की इस लापरवाही से विहाड़ी के स्कूल में कोरोना वायरस के फैलने के खदशात मंडाने लगे हैं, जबकि महकमा तालीम के ज़रिए अफसरान सिर्फ शहर के स्कूल में फोटो सेशन करके आला अफसरान को सब अच्छा की रिपोर्ट देने लगे हैं। कैमरामैन शहजाद मुगल के साथ मोहम्मद नदीम लक, सच न्यूज विहाड़ी। कौन सा कोरोना, कैसे SOPs? लिया के सरकारी स्कूल्स में कोरोना वायरस SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। तलबा और असातिज़ा कोरोना SOPs से लाइल्म हैं। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी तो आई मगर अभी खत्म नहीं हुआ। लिया के स्कूल खुल गए लेकिन कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। अगर लिया के स्कूलों को कोरोना वायरस फैलाव का सबब कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लिया के नवा इलाका बस्ती इलियानी और बस्ती गिशकोरी के स्कूल के क्लासरूम में समाजी फासला पर अमल दरामद नहीं तो स्कूलों में मौजूद बच्चों और असातिज़ा ने मास्क तक नहीं पहन रखे, जबकि महकमा तालीम के जानिब से तलबा को मास्क की फराहमी के साथ SOPs पर अमल दरामद के दावे भी यकसर गलत निकले। ये सब 6th क्लास है, नए बच्चे आ रहे हैं तो हमने इनको रोज़ाना तकीद करते हैं, रोज़ाना चेक करते हैं, लेकिन अगर हम इनको ज़्यादा सख्ती करें ना तो फिर ये स्कूल छोड़ जाएंगे, फिर हमारी स्ट्रेंथ पे काफ़ी असर पड़ता है। ये देहाती बैकवर्ड इलाके के लोग हैं तो इसलिए ये थोड़ा सा इसको मीडिया टीम के दरियाफ्त करने पर असातिज़ा भी कोरोना SOPs से लाइल्म निकले। सैनिटाइजर की जगह बच्चों के हाथ सर्फ मिले पानी से धुलवाए जाने लगे। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज लिया। साहिवाल THQ टीचिंग अस्पताल में वर्ल्ड हार्ट डे के मौका पर आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं एहतशाम अली। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आगाही वाक का इनकाद किया गया। वाक के शुरका ने हार्ट डे के हवाले से बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर दिल की बीमारियों के मुतल्लक आगाही तहरीरें लिखी हुई थी। ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों की रोकथाम के लिए शहरियों की आगाही के लिए लेक्चर का एहतमाम किया गया। दिल की बीमारियों से बचने के लिए शहरी वजन में कमी के साथ मतवाजन गज़ा का इस्तेमाल करें। वाक में MSDHQ डॉक्टर अब्दुल वहीद और पैरामेडिकल स्टाफ नर्सेज ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर जाहिद कमाल सिद्दीकी प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ने कहा कि दिल की बीमारियों की तशखीस के लिए जदीद पेरिफेरल एंजियोग्राफी वर्कशॉप का भी इनकाद किया गया। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर अस्पताल इंतजामिया ने मरीजों में फल तकसीम किए। कैमरामैन श्री मुगल के साथ मलक एहतशाम अली, सच न्यूज साहिवाल। फैसलाबाद में ओमेगा डेवलपर्स की तरफ से ओमेगा रेजिडेंशिया की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें CEO ओमेगा डेवलपर्स चौधरी सरवर समेत अहम कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। फैसलाबाद के दरमियाने तबके और सरकारी मुलाजमीन की आसाइशों को मद्देनजर रखते हुए फैसलाबाद की शानदार लोकेशन पर ओमेगा रेजिडेंशिया हाउसिंग स्कीम का शानदार तरीके से आगाज कर दिया गया। इस तकरीब का इफ्तिताह CEO ओमेगा डेवलपर्स चौधरी सरवर ने किया। इस मौका पर प्रॉपर्टी डीलर्स और रियल एस्टेट से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने प्रोजेक्ट में दिलचस्पी भी जाहिर की। 3, 5 और 8 मरला के प्लाट अब कम आमदनी वाले अफराद भी बआसानी खरीद सकते हैं। यहां पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अराकीन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नुकता था वो ये था कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो गिरफ्तारी हुई है वो सब के लिए जो था वो काबिल अफसोस और काबिल तशवीश जो है वो मामला था। उस पर बात हुई कि इस तरह से जमहूरी अदारे कमज़ोर हो जाएंगे और इस पर भी इत्फाक था कि इस तरह के हथकंडों से जमहूरियत कमज़ोर होगी और पाकिस्तान के अवाम के गमो गुस्सा में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। इसलिए अगर उनके खिलाफ रेफरेंस जारी हो चुका था तो फिर उनको गिरफ्तार करने का कोई जवाज़ नहीं था। इसी तरह बाकी लीडरान भी ये कह रहे हैं या समझ रहे हैं या एक बात सामने आ रही है, क्योंकि हुकूमती वज़रा जो हैं वो आकर आए दिन चैनल्स पर बैठकर एक ही चीज़ की रट लगाते हैं कि हमने इतने बंदों को गिरफ्तार कर लिया, फिर वो पेशगोइयाँ करते हैं कि फ़लाँ दिन को फ़लाँ गिरफ्तार हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि नैब की जो इंडिपेंडेंट पोजीशन है वो कंप्रोमाइज़ हो गई।
उससे यूं समझता है कि अगर फिर कोई ये कहता है कि हुकूमत और नैब का गठजोड़ है तो फिर ये बात आम आदमी को समझ आना शुरू हो जाती है। इसलिए हुकूमती वज़रा जो हैं जिस अंदाज से वो कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये नैब एहतसाब तो हो ही रहा होगा, उससे तो शायद किसी को कोई गर्ज नहीं है, ना हम कहते हैं कि एहतसाब ना हो, लेकिन किसी की तज़हीज़ का अगर मकसूद है, अगर उसकी बेइज्जती मकसूद है, तो ये मैं समझता हूँ इसकी कोई कानून भी इजाज़त नहीं देता। दूसरी बात ये थी कि स्टीयरिंग कमेटी ने आज ये भी फैसला किया कि 11 अक्टूबर को कोयटा के मकाम पर एक अजीम व शान आल पार्टी जो है वो जलसा होगा, इसी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहत, और वो ऐसा जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान की सियासत का एक नई तारीख रकम करेगा। और ये फिर जलसों का एक तवातर होगा, एक सीरीज होगी जलसों की जो कि तमाम सूबों में होगी, और इसलिए होगी कि पीडीएम ये समझती है कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त बहुत मुश्किल का शिकार है। पाकिस्तान के अवाम का जीना दो बार हो चुका है, महंगाई और बेरोजगारी ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है, और इस वक्त लाकानूनियत ने भी, और जिस तरीके से मामलात को चलाए जा रहे हैं, जिस तरह मईशत को चलाया जा रहा है, जिस तरह फॉरेन पॉलिसी को चलाया जा रहा है, वो पाकिस्तान के लिए तकलीफ देह है और आइंदा पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए एक जिम्मेदार अपोजिशन होते हुए मैं समझता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो आज हुकूमत में नहीं है, सिर्फ एक पार्टी हुकूमत में है, और बाकी तमाम जमातें जो है इस बात पर मुत्फिक हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े होंगे, उनके दुख और सुख के साथी बनेंगे। और आज जो महंगाई और बेरोजगारी जिस बुरे तरीके से मुसल्लत हो रही है, वफाकी और सरकारी मुलाजमीन की जिस तरह कमर टूट चुकी है, उनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ, पेंशनदार जो लोग हैं, पेंशनर जो हैं, वो इस काबिल भी नहीं रहे बेचारे कि अपने उस पेंशन से 2 वक्त की रोटी हासिल कर सकें। तो ये ऐसे मामलात हैं जिस पर अपोजिशन चुप करके नहीं बैठ सकती, और ये एक जमहूरी तरीका है, एक जमहूरी निज़ाम का हम हिस्सा है, और हम चाहते हैं कि जमहूरी अंदाज से हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े होंगे। ये हमारा रिजॉल्व है। जो कन्वीनर है वो रोटेशन के तहत होंगे। कन्वीनर जो है वो इस स्टीयरिंग कमेटी के पहले महीने के लिए कन्वीनरशिप जो है वो PMLN के पास है, और वो जनाब असद इकबाल साहब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तमाम अपोजिशन जमातों का एक हंगामी इजलास हुआ, जो आपको बताया गया कि वो अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ की बिलाजवाज गिरफ्तारी के हवाले से था, और पूरे हाउस में इस गिरफ्तारी की मजम्मत की गई। जहां तक गाजी खान में मिट्टी का तोदा गिरने से 2 मजदूर जाँ बाग हो गए। मकामी अफराद ने अपनी मददात के तहत लाशों को निकाल लिया। अली रजा हमदानी की रिपोर्ट। चमड़े से बनाए जाने वाले जूतों की तारीख बहुत पुरानी है। इनकी बनावट और मटेरियल वक्त के साथ साथ बदलता रहा, लेकिन चिन्योट में आज भी कदीम तरीके से चमड़े के जूते तैयार किए जाते हैं। अब्दुल रहमान कलियार की रिपोर्ट। लकड़ी, प्लास्टिक, कपड़े, फोम और जानवरों के चमड़े से खूबसूरत दीदा जेब और पायादार जूते हर दौर में इंसानी जरूरत के साथ साथ इंसानी शख्सियत की खूबसूरती में अपना किरदार अदा करते चले आ रहे हैं। पुराने अदवार में खूबसूरत जूते कारीगर अपने हाथों से तैयार करते थे। जिससे वक्त के साथ इंसानी तरक्की हुई, वहाँ इन कारीगरों की जगह जदीद मशीनों ने ले ली। इसके बावजूद लालिया में आज भी खालिस चमड़े के देसी खुद से पायादारी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। शादी ब्याह के मौके पर लोग हाथों से बने चमड़े के खुद से, जिनके ऊपर तीले और मोतियों से खूबसूरत नक्श नगारी हैं, पसंद करते हैं, जिनको खरीदने के लिए लोग पूरे पाकिस्तान से आते हैं, बल्कि अपने पैरों को तोहफे के तौर पर बरौने मुल्क भेजते हैं। कैमरामैन एमएम तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज चिन्योट। खैरपुर के कौमी शाहरा के दोनों अतराफ सजी खूबसूरत रलियां देखने वालों की तवज्जो का मरकज बन गई। अली गौहर की रिपोर्ट।
सिंध की तहजीब व सकाफत के रंगों से सजी रली घरों में मेहमानों के लिए खास तौर पर सजाई जाती है। रली मुख्तलिफ रंगों के नक्शो निगार से बनाई जाती है। रली बेचने वालों और खरीदारों का कहना है कि सिंध की सकाफत को फरोग देने के लिए हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। ये देखें जिस तरह ये लगी हुई है, हमारी कल्चर की पहचान भी है और इनको गवर्नमेंट को चाहिए प्रमोट करे ताकि एक तो हमारे कल्चर प्रमोशन होगी, दूसरा बिजनेसेस को फायदा होगा, जो काम करने वाले लोकल उनको फायदा होगा। जैसे मैं जाते हुए भी लेकर जा रहा हूँ, अपने दोस्तों को गिफ्ट करूँगा। तो इस तरह गवर्नमेंट को चाहिए कि डिफरेंट जगहों पे इनको डिस्प्ले करे, सपोर्ट करे इनको, ताकि एक इंडस्ट्री को भी फरोग मिले और हमारे कल्चर की भी इसमें पजीराई हो। सिंध हुकूमत को चाहिए कि रली की सनत से वाबस्ता मजदूरों को सहूलियात फराम करे ताकि बेहतर रोजगार के साथ साथ सिंध की सकाफत को मुल्क और बैरून मुल्क भी पजीराई हासिल हो सके। कैमरामैन टीम के साथ अली गौर गुपांग, सच न्यूज खैरपुर। खोए, पिस्ते और बादाम से तैयार करदा रहीम यार खान की तहसील खानपुर के पेड़े न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में शोहरत का अलग मकाम रखते हैं। ये मुनफरिद और मजेदार पेड़े कैसे तैयार किए जाते हैं और इनकी वजह शोहरत क्या है, देखिए रहीम यार खान से मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। 3 सूबों के संगम पर वाक़या होने की वजह से जिला रहीम यार खान को एक खास अहमियत हासिल है। अगर आप भी कभी जिला रहीम यार खान का सफर करें तो आप लाजमन रहीम यार खान की तहसील खानपुर के पेड़े खाना पसंद करेंगे। ये पेड़े पाकिस्तान के साथ साथ बैरून मुमालिक में भी खासी शोहरत के हामिल हैं। हर किसी के मनपसंद खानपुर के ये पेड़े बड़ी मेहनत से तैयार किए जाते हैं। दूर दराज के देही इलाकों से कई मन दूध इकट्ठा करने के बाद इसे बड़े कड़ाहे में खूब अच्छी तरह से पकाया जाता है। पेड़े बनाने के लिए दूध में अखरोट, काजू, पिस्ता, बादाम, चीनी और मुख्तलिफ इकसाम की मजेदार चीजें इस दूध में मिक्स की जाती हैं। पेड़े बनाने वाले कारीगर तमाम पेड़ों को एक ही डिजाइन में निहायत ही खूबसूरत अंदाज से तैयार करते हैं। जिला रहीम यार खान के रिहायशी तहसील खानपुर के पेड़े बड़े शौक से अपने अजीजों अकारब और दोस्तों को मुख्तलिफ शहरों और बैरून मुमालिक में बतौर तोहफा भिजवाते हैं। खानपुर के पेड़े और खोया ये खानपुर की मशहूर सौगात हैं और इसे बहुत पसंद किया जाता है। पेड़े और खोया अजीजों अकारब को तोहफे के तौर पर भिजवाते हैं, जिनको बहुत पसंद किया जाता है। ये लेके जा रहे हैं। यूं तो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की बेशुमार अशिया मशहूर है, मगर खानपुर के पेड़ों की तो बात ही कुछ अलग है। आप भी जब कभी जिला रहीम यार खान तशरीफ लाएं तो तहसील खानपुर के पेड़ों को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज, रहीम यार खान। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।